India is a country of year-round festivities. In a country with 28 states and 8 union territories, multiple religions and their millions of deities and more than 120 languages and thousands of dialects, it is no surprise that we have hundreds of festivals being celebrated throughout the year. But something that might not only surprise but shock you are some of the bizarre festivals and rituals that are celebrated throughout the country. Women repeatedly hitting a man with huge bamboo sticks, giant tires being raced to the finish line, and people being trampled over by cows seem like either horrible news stories or ridiculous scenes from a comedy film. मगर मैं आपको बता दूं कि इंडिया के कुछ शहरों में और कुछ फेस्टिवल्स के दौरान ये नज़ारे काफ़ी कॉमन होते हैं। तो आज हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया के कुछ ऐसे फेस्टिवल्स जिनके बारे में आपने शायद सुना नहीं होगा, मगर आज के बाद आप इन्हें भुला भी नहीं पाएंगे। हमारी आज की जर्नी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। आमतौर पर त्योहार का समय लोगों से मिलने का और खुशियां बांटने का समय होता है। तो अगर किसी त्योहार में किसी की पिटाई हो रही हो तो थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? मगर ऐसा ही होता है मथुरा की लठमार होली में। ये त्योहार शुरू होता है हिंदू कैलेंडर के फागुन महीने की 9वीं तारीख को, जो कि अक्सर इंग्लिश कैलेंडर के मार्च महीने में पड़ता है, होली से 2 दिन पहले। और ये त्योहार 1 हफ्ते तक चलता है और खत्म होता है रंग पंचमी के दिन, जो कि होली के 5 दिन बाद आता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण दोस्तों के साथ अपने गांव यानी नंद गांव से निकलकर बरसाना जाते थे राधा और उनकी सहेलियों को रंग लगाने। जब कृष्ण और उनके दोस्त राधा उनकी सहेलियों का मजाक उड़ाते तो सब लड़कियां उन्हें लाठी मार मार के गांव से निकाल देती, और ये परंपरा आज भी चली आ रही है। होली के दिन लड़के नंद गांव से निकलकर बरसाना जाते हैं और वहां लड़कियों को रंग लगाते हैं। एंड जस्ट लाइक द ओल्ड स्टोरीज, the girls wield lathi and playfully strike the boys on their head, who thankfully protect themselves with a shield. The men are driven out of the village, and if any of them are caught, they are made to wear female outfits and dance in public. Of course, people also indulge in the usual elements of holy celebration, including song, dance, and thandai. उत्तर प्रदेश से आते हैं उज्जैन मध्य प्रदेश की तरफ, जहां एकादशी का त्योहार मनाया जाता है काफी स्कैरी तरीके से। If you thought the famous Spanish festival of running of the bulls is dangerous, this will truly scare you. हिंदू धर्म में एकादशी को उपवास और शुद्धिकरण का दिन माना जाता है, मगर उज्जैन के भीरावड़ गांव की ऐसी परंपरा है जो लोगों के लिए जानलेवा भी हो सकती है। वैसे तो साल में कई एकादशी मनाई जाती है, मगर उज्जैन में यह प्रथा प्रबोधनी एकादशी के दिन मनाई जाती है, जो कि दिवाली के बाद आती है। On this auspicious day, the people who pray to goddess Gauri and have their wishes granted decide to honor the goddess by lying down on the ground as cows run over them. Yes, you heard that right. Cows running over people. Devotees lie down on their stomachs, and the cows, after being decorated with colors and henna, are made to run from one end of the village to the other, passing through the people on the way. However painful this experience might be, for the people who believe in the ritual, nothing can discourage them from honoring goddess Gauri. Even though the ritual has been going on since ancient times, apparently no deaths have been reported so far. From cows running, we come to young couples running away during the Bhagoria festival. For most of the state, this is a festival that celebrates the end of the harvesting season. But in Alirajpur district, the Bhil and Bhilala communities celebrate it in a special manner in the week leading up to Holi in the month of March. During these 7 days, a matchmaking fair called Bhagoria Haat is set up, where young boys and girls are decked up in flashy clothes and jewelry. जिस लड़की को कोई लड़का अच्छा लगता है और शादी करने लायक लगता है, वो उसके माथे पर गुलाल लगाती है। अगर लड़का भी उस लड़की को पसंद करता है तो वो भी उसके माथे पर गुलाल लगाता है और दोनों मिलकर एक पान खाते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में मिलके जंगल की ओर भाग जाते हैं। थोड़े दिन बाद जब वो वापस घर आते हैं तो परंपरा के अनुसार दोनों परिवार उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और इस फेस्टिवल का नाम भी इसी परंपरा से आया है।
भाग जाने से भगोड़िया उत्सव, और ये हर साल मनाया जाता है। एक और फेस्टिवल जहां भागना और भगाना लगा रहता है वो है पंजाब का किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जिसे रूरल ओलंपिक्स के नाम से भी जाना जाता है। 1933 से चला आ रहा ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल इतना मशहूर है कि पूरे देश से और यहाँ तक कि विदेश से भी लोग इसे देखने आते हैं। और इस फेस्टिवल की खासियत है अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स, जैसे हॉर्स कार्ट रेसिंग, डॉग रेसिंग, ट्रैक्टर रेसिंग, टायर रोलिंग एंड 100 मीटर डैश फॉर द एज ग्रुप ऑफ 90-year-olds। और इन सब के अलावा देयर आर आल्सो वेरियस डिस्प्लेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोवेस लाइक पुलिंग व्हीकल्स विद हेयर एंड स्टंट्स ऑन हॉर्सबैक एंड परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डांसेस एंड एक्ट्स। एक नजारा जो शायद आपको देखकर इम्पॉसिबल लगेगा वो है ट्रैक्टर को लोगों के ऊपर से चला के ले जाना। इस फेस्टिवल का एक और फेमस स्पोर्ट था बुल रेसिंग, मगर 2014 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर उसे बैन कर दिया गया। इस फेस्टिवल की खूबसूरती यह है कि ये सिर्फ मर्दों तक सीमित नहीं है। आपको यहाँ औरतें और लड़कियां भी अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करती नजर आएंगी। Apart from the rural games, there are also a few modern games like hockey, cycling, and other field events. All in all, the Kila Raipur Sports Festival is truly the Rural Olympics of India, and it is a wonderful celebration of our physical as well as mental abilities. आखिर में जिस त्योहार की हम बात करने वाले हैं उसके बारे में आपने शायद सुना होगा, मगर कितने अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है ये आप नहीं जानते होंगे। This festival celebrates a creature that most of us are scared of and would never want to come face to face with. Yes, I am talking about Nag Panchami or the festival of the snake god. जम्मू की डोगरा कम्युनिटी में नाग पंचमी का बहुत महत्व है। घरों में नाग देवता की पूजा होती है और उनके रूप को घर के अलग अलग कमरों में पेंट किया जाता है। कहा जाता है कि पूरे कश्मीर में नाग देवता के 700 से भी ज्यादा मंदिर हैं। कई जगहों पर सपेरे गली गली घूमकर अपने सांपों का प्रदर्शन करते हैं और उन्हें दूध भी पिलाते हैं। उत्तर प्रदेश में और खासकर बनारस में नाग पंचमी का सेलिब्रेशन सबसे ज्यादा कुश्ती के अखाड़ों में होता है, जहां नाग देव की पूजा होती है। और बिहार के समस्तीपुर में तो एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। नाग पंचमी के दिन आपको समस्तीपुर में बहुत से लोग सड़कों पे गले में सांप लिए घूमते नजर आएंगे। शॉकिंग, राइट? Can you imagine hundreds of people walking through the streets with snakes in their hands and around their necks? Might seem scary to us, but people seem to be fearless as they carry these snakes along and sing praises to Nag Devta. Whatever the reason behind these strange festivals and celebrations, we have to agree that India is a country with rich culture, and even though we are moving towards the future, we haven't cut off our ties with the past. अभी तो हमने सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात की है। अब आप ही सोचिए कि पूरे देश में ऐसे कितने सारे अद्भुत त्योहार होंगे। वैसे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में हम आपको ऐसे कई फेस्टिवल्स और रिचुअल्स के बारे में बताएंगे। और तब तक घर बैठे बैठे अगर आप अपना नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं तो आ जाइए ZEE5 पर और खेलिए माइंड वॉर्स।